Hello students, now we start JEE Advanced PYQ. Okay, so this is our JEE Advanced previous year questions lecture number 1 students. पर lecture हम 4 to 5 MCQ solve करेंगे और ये lectures आपको regular इंटरवल में YouTube पे मिलते जाएंगे. ठीक है, चलो. So we start with the JEE Advanced previous year questions. First lecture students. चलो, this is our first lecture IIT 2023. Chalo. So what is the first question? A particle of mass is moving in the xy plane such that its velocity at a point is given as. Chalo, what is the velocity? V is equals to alpha y I cap plus 2x j cap. What is the velocity? Alpha y I cap plus 2x j cap. Now where alpha is a non-zero constant, what is the force affecting the particle? We want to find force. क्या find करना है हमें students? Force. Now general force क्या होता है? Force equals to m into a. तो हमें find करना होगा acceleration. चलो, तो velocity के वेक्टर को फॉर्म में वैसे लिख सकते हैं vx I cap plus vy j cap alpha y I cap 2 alpha x j cap. Now compare the coefficient of I cap. See here, what is the coefficient of I cap, students? Here the coefficient of I cap is Vx and here alpha y. So Vx is equals to alpha y. Same here, what is the coefficient of J? Vy. And here what is the coefficient of J? 2 alpha x. Chalo, now we want to find force. So what is the formula for the force? Mass into acceleration. So first we find acceleration. Chalo, acceleration means what? dv by dt. Acceleration means what? dv by dt, derivative of v. So dvx by dt, alpha constant, take differentiation with respect to time. This is the what? dv by dt means acceleration but velocity in x direction. So we get acceleration in x direction. Now what is dy by dt? Velocity in y direction. Chalo, what is the velocity in y direction? What is the velocity in y direction? 2 alpha x. चलो, तो 2 अल्फा स्क्वायर एक्स, ये हो गया एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन. सेम वाई एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन. तो टेक डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. अगेन 2 अल्फा dx by dt. चलो, dv by dt means velocity, but velocity in y direction, so acceleration in y direction. What is dx by dt? Vx. Now what is the velocity in x direction? Alpha y. So we get 2 alpha square y. Chalo, now we want to find force, or students answer in the form of vector. Chalo, so how to find? F is equals to ma. Acceleration means ax I cap plus ay j cap. Chalo, acceleration means ax I cap plus ax y cap. Now what is the acceleration in x direction? 2 alpha square. 2 alpha square common, so xi plus yj, and c, it is our answer. Okay, option A. Chalo, so now next question. Next question, it is again 2007 IIT. What is the given momentum? P is given. P is equals to I cos kt and minus j sin kt. ये है momentum. If k is a constant, the angle between f and p, f means force and p means momentum. We want to find angle between f and. So what is the, how to find angle between? What is the formula? See students, what is the formula for the dot product? A vector dot b vector is equal to ab cos theta. So if you want to find cos theta, that cos theta is a subject, so a vector dot b vector by ab. Clear hai? But now we want to find angle between force and momentum. So how to find angle between force and momentum? What is the formula? Numerator dot product, denominator product of magnitude. So we want to find angle between f and p. So what is the formula? F vector dot p vector by fp. हमारे पास स्टूडेंट्स सी क्वेश्चन में p तो दिया है, क्वेश्चन में p ऑलरेडी दिया है, आपको क्या फाइंड करना है? सिर्फ फोर्स. तो न्यूटन सेकेंड लॉ, फोर्स कैसे फाइंड कर दो करोगे? अगर मोमेंटम दिया हो तो फोर्स इक्वल्स टू dp बाई dt. क्या करोगे? फोर्स इक्वल्स टू dp बाई dt. चलो, तो पहले फोर्स फाइंड कर दो. वी वांट टू फाइंड एंगल बिटवीन फोर्स एंड मोमेंटम, लेकिन मोमेंटम इज गिवन, फोर्स इज नॉट गिवन. तो फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम.
चलो मोमेंटम का डिफरेंशिएशन करना होगा. क्या है मोमेंटम? मोमेंटम का डिफरेंशिएशन करना है. मोमेंटम क्या है? I cos kt माइनस j sin kt. चलो कैसे करोगे डिफरेंशिएशन? I कैप एज इट इज, cos का डिफरेंशिएशन माइनस sin. What is the differentiation of cos? Minus sin. After the differentiation, multiply with the coefficient of t. What is the coefficient of t? K. Same sin का differentiation. Cos t. After the differentiation, multiply with the coefficient of t. ये chain rule है. t के coefficient से तो multiply करो. What is the coefficient of t? K. चलो तो force is equals to. अगर आपको स्टूडेंट चेन रूल नहीं आता है तो मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन का लेक्चर नंबर 5 है. मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन लेक्चर नंबर 5 में मैंने चेन रूल करवाया है, वो एक बार रिफर कर लेना. चलो तो व्हाट इज द फोर्स? माइनस आई के साइन के टी माइनस जे के कॉस के टी. हो गया. चलो ये हो गया हमारा फोर्स. लेकिन क्वेश्चन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है. हमें फाइंड क्या करना है? एंगल बिटवीन फोर्स एंड मोमेंटम. क्या होगा फॉर्मूला? कॉस थीटा इज इक्वल्स टू एफ वेक्टर डॉट पी वेक्टर बाय एफ पी. चलो तो न्यूमेरेटर में क्या है? डॉट प्रोडक्ट. चलो डॉट प्रोडक्ट फाइंड करो. डॉट प्रोडक्ट फाइंड करो. एफ वेक्टर डॉट पी वेक्टर. क्या है हमारा एफ वेक्टर? माइनस आई कैप के चलो तो क्या है हमारा? पहले हम ये लिख देते हैं के साइन के टी माइनस के साइन के टी आई कैप, फिर माइनस के कॉस के टी जे कैप. ये हमारा एफ हो गया. नाउ क्या है पी? व्हाट इज द पी वेक्टर? पी क्या है? आई कॉस चलो क्या है हमारा पी वेक्टर स्टूडेंट्स? पी वेक्टर है कॉस के टी आई कैप माइनस साइन के टी जे कैप. चलो क्या है रूल? डॉट प्रोडक्ट का रूल क्या है? आई इज इन डॉट प्रोडक्ट विथ आई, जे इज इन डॉट प्रोडक्ट विथ आई. आई इज इन डॉट प्रोडक्ट विथ आई. चलो आई इज इन डॉट प्रोडक्ट विथ आई, जे इज इन डॉट प्रोडक्ट विथ जे. तो क्या होगा? माइनस के आई डॉट आई वन माइनस साइन के टी कॉस के टी माइनस माइनस प्लस क्या आएगा? कॉस के टी साइन के टी. चलो माइनस प्लस कैंसल हो जाएगा स्टूडेंट्स. चलो तो माइनस प्लस कैंसल. व्हाट इज द आंसर? माइनस के साइन के टी एक पूरा कैंसल, जीरो. तो डॉट प्रोडक्ट जीरो. चलो तो डॉट प्रोडक्ट जीरो मीन्स cos थीटा जीरो, cos थीटा जीरो मीन्स थीटा पाई बाय 2. चलो क्लियर है. नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ what is the next question? A ball is projected from the ground at an angle of 45 degree with the horizontal surface. कितने एंगल पे थ्रो किया है हमने? 45 डिग्री with the वेलोसिटी नहीं दिया है. एंगल कितना है? फर्स्ट इनिशियल एंगल 45 degree and it reaches the maximum height. What is the maximum height? Maximum height 120 meter and returns to the ground. Okay, तो फर्स्ट क्या कर रहा है? रिटर्न टू द ग्राउंड. अप टू द हिटिंग द ग्राउंड फॉर द फर्स्ट टाइम इट लूजेस हाफ ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी. तो सपोज फाइनल में जो काइनेटिक एनर्जी है वो इनिशियल से क्या है? हाफ. आफ्टर द फर्स्ट रिबाउंड जो काइनेटिक एनर्जी है वो इनिशियल से क्या है? हाफ. चलो एंड इमीडिएटली आफ्टर द बाउंस द वेलोसिटी ऑफ द बॉल मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल. बाद में कितना एंगल हो गया? चलो पहले ऐसे जा रहा है. कैसे मोशन होगा? पहले ऐसे, फिर रिबाउंड वापस ऐसा. ठीक है, रिबाउंड करके 2 बार प्रोजेक्टाइल हो रहा है. चलो तो फर्स्ट टाइम जब एंगल कितना था? 45, सेकंड टाइम में 30. तो पहले आप क्या करो? फर्स्ट में आपको जो मैक्सिमम हाइट दिया है स्टूडेंट्स उससे यू फाइंड करो. यू फाइंड करो. चलो क्या है मैक्सिमम हाइट की फॉर्मूला फॉर द प्रोजेक्टाइल मोशन? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय प्रोजेक्टाइल में एंगल विद द हॉरिजॉन्टल. यहाँ पे हॉरिजॉन्टल के साथ ही है 45 एंगल विद द हॉरिजॉन्टल. चलो तो u फाइंड करना है. व्हाट इज थीटा? 45 g 10. चलो तो u स्क्वायर
ये 120 इंटू 20 मल्टीप्लाई में व्हाट इज साइन 45 1/√2 लेकिन स्क्वायर तो 1/2 तो व्हाट इज द आंसर 2400 इंटू 2 तो व्हाट इज द आंसर फॉर u स्क्वायर 4800। चलो अभी सेकंड रिबाउंस ये आफ्टर द फर्स्ट रिबाउंस immediately after the bounce what is the final kinetic energy after the bounce what is the kinetic energy k dash half of the initial loses half of its kinetic energy half kinetic energy lose किया कितना बचेगा half ठीक है चलो तो half m u dash square 1/2 half m u square half m cancel u dash square is equal to u square by 2 what is u square 4800 चलो तो आफ्टर रिबाउंड डेज व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ स्पीड 2400 लेकिन अभी आपको फाइंड क्या करना है आफ्टर द रिबाउंस कितनी आपको फाइंड करनी है वापस हाइट एंगल कितना है 30 चलो ठीक है पहले कितने एंगल पे थ्रो किया था 45 आफ्टर द बाउंस वो कितने एंगल पे जा रहा है 2 बार प्रोजेक्टाइल होगा पहले इस तरह से वापस इस तरह से दूसरी बार में कितना एंगल है 30 पहले में कितना था 45 ओके चलो तो व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट फॉर्मूला hm is equals to what is the speed u dash square what is the angle 30 चलो what is u dash square 2400 चलो what is u dash square 2400 what is sin 30 1/2 लेकिन स्क्वायर 1/4 what is the value 2g10 चलो तो फाइनल आंसर 0 कैंसल 120/4 फाइनल इज 30 मीटर चलो व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट 30 मीटर चलो क्लियर है नेक्स्ट क्वेश्चन ये थोड़ा पुराना क्वेश्चन आईआईटी 1982 a particle moves towards east with a velocity 5 meter per second after 10 seconds its direction changes towards north with the same velocity द एवरेज एक्सेलरेशन ये बहुत ही इजी मेथड है स्टूडेंट्स इसमें कोई भी डायग्राम करने की जरूरत नहीं डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा ये बहुत ही ट्रेंडिंग क्वेश्चन है बाद में भी काफी बार आया है ठीक है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो आप क्या करो ये साइन कन्वेंशन याद रखो स्टूडेंट्स ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट अगर नॉर्थ है तो आपको लेना है जे कैप यूनिट वेक्टर जे यहाँ पे माइनस जे कैप ईस्ट हो तो आई कैप और वेस्ट हो तो माइनस आई ठीक है इससे ये क्वेश्चन आसान हो जाएगा चलो पहले कहां पे है वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी वी आई मींस v1 इनिशियल वेलोसिटी क्या है व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी पार्टिकल मूव्स टुवर्ड्स ईस्ट ईस्ट मींस आई लिखेंगे ईस्ट मींस आई लिखेंगे तो phi i चलो फिर आफ्टर द टाइम 10 सेकेंड लेटर its direction changes towards north पहले ईस्ट में फिर नॉर्थ पहले ईस्ट फिर नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ मींस क्या लेंगे आप जे तो phi j चलो ठीक है क्या फाइंड करना है आपको एवरेज एक्सेलरेशन तो एक्सेलरेशन मींस क्या होता है चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम चेंज इन वेलोसिटी ऑलवेज फाइनल माइनस इनिशियल ले लो ठीक है क्या लेना है चेंज इन वेलोसिटी में ऑलवेज फाइनल माइनस इनिशियल चलो क्या है फाइनल वेलोसिटी vf क्या है इनिशियल वेलोसिटी vi और टाइम 10 चलो तो क्या है फाइनल वेलोसिटी 5j माइनस 5i डिवाइड बाय चलो हमें डायरेक्शन भी फाइंड करना है मैग्नीट्यूड भी फाइंड करना है डायरेक्शन आ गया स्टूडेंट्स देखो कैसा आया डायरेक्शन क्या है डायरेक्शन माइनस आई और जे माइनस आई और जे तो माइनस आई मीन्स वेस्ट माइनस आई मीन्स वेस्ट और जे मीन्स नॉर्थ तो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन आया स्टूडेंट्स पता चला क्या क्या एक्सेलरेशन मीन्स चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम वेलोसिटी मीन्स फाइनल माइनस इनिशियल व्हाट इज फाइनल वेलोसिटी 5j व्हाट इज इनिशियल -5 तो माइनस आई आ रहा है देखो माइनस आई मीन्स वेस्ट फिर जे आ रहा है जे मीन्स नॉर्थ तो डायरेक्शन क्या होगी नॉर्थ वेस्ट
अगर ये एक्सेलरेशन की डायरेक्शन, अगर आपको फोर्स की डायरेक्शन पूछे तो भी वही आता है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, फोर्स एंड एक्सेलरेशन दोनों सेम डायरेक्शन। बहुत आसान हो गया। चलो अभी नॉर्थ वेस्ट का तो एक ही ऑप्शन है, आ गया हमारा आंसर। लेकिन अगर आपको मैग्नीट्यूड फाइंड करना है तो सेपरेट द डिनोमिनेटर, 1/2 j कैप माइनस 1/2 i कैप। नाउ स्क्वायरिंग एडिंग, सो यू गेट द आंसर 1/√2। चलो क्लियर है, तो इजी हो जाएगा इससे क्वेश्चन IIT 1982। चलो तो नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, देखो इन द अरेंजमेंट सो इन द फिगर, ये भी IIT 1982 का। इन द अरेंजमेंट सो इन द फिगर द एंड्स P, ये है एंड P and the Q of an unstretchable string move downward with a uniform speed v। चलो तो पुलीज A and B are fixed, ये दोनों फिक्स पुली है। तो मास M अब मूव्स अपवर्ड्स विद अ स्पीड, तो आपको ये क्या फाइंड करना है, M की स्पीड अपवर्ड में कितनी। चलो तो कैसे फाइंड करोगे स्टूडेंट्स, देखो ये जो P एंड है, ये जो P एंड है वो कितनी स्पीड से नीचे जा रहा है, u स्पीड, या u क्या है स्पीड, तो ये जो एंड है इसकी भी कितनी स्पीड होगी, u। ठीक है, चलो तो अभी यहां पे हम ट्रायंगल बना देंगे। ये सपोज हम ले लेंगे r, ये चलो ये हमारा r, ये जो मास m है ये मास ऊपर जा रहा है। मास m कहां पे जाएगा, जब ये नीचे आएगा, जब ये आप नीचे खींचोगे तो मास m कहां पे जाएगा, ऊपर। तो सपोज मास m यहाँ पे हम ले लेंगे x, यहाँ पे ले लेंगे y। चलो देखो स्टूडेंट्स, ये जो डायग्राम है, यहाँ पे ये जो वेलोसिटी है, ये जो डिस्टेंस है y, उसमें कुछ चेंज नहीं होगा। y क्या होगा, कांस्टेंट। y क्या है, कांस्टेंट। क्यों y कांस्टेंट, y तो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस चेंज नहीं होगा। ये जब अपवर्ड जाएगा तो ये वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, x चेंज होगा। और ये जो dx/dt है इसको हम बोलेंगे v, इसको हम क्या बोलेंगे, v मींस v डैश कह देंगे। v डैश मींस किसकी वेलोसिटी है, ब्लॉक। ये v डैश किसकी वेलोसिटी, ब्लॉक। और ये जो आपको दिख रहा है ये वेलोसिटी, ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस, ये जो है वो हमारा r है। और dr/dt को हम बोलेंगे u। ये किसकी स्पीड है, जो आपने पुल किया वो स्पीड है r, u स्पीड ऑफ p, ये जो आपने p से खींचा वो स्पीड है u। ठीक है, चलो तो चलो ये क्लियर है क्वेश्चन। ये यहां पे क्या था, चलो ये कौन सा एंड था, ये जो एंड है वो क्या है, P। आपने P को इस तरफ खींचा तो ये R ऊपर गया, ये ब्लॉक भी कहा गया ऊपर, लेकिन ये डिस्टेंस क्या है, ये y कांस्टेंट। ठीक है, आप ये P को, ये P जो एंड है वो नीचे जा रहा है u स्पीड से, तो ये जो है वो B कितनी स्पीड से जाएगा, u स्पीड से। और ये ब्लॉक कितनी स्पीड से ऊपर जा रहा है, v डैश, लेकिन ये जो है वो y क्या होगा, कांस्टेंट। चलो तो नाउ हाउ टू सॉल्व। चलो ये राइट एंगल ट्राइंगल है स्टूडेंट्स। चलो ये राइट एंगल ट्राइंगल, तो आप लिखा दो पाइथागोरस। ये जो एंगल है वो आपको कितना दिया यहाँ पे, थीटा। पाइथागोरस लगा दो, r² इज इक्वल टू x² प्लस, नाउ वी वांट टू फाइंड वेलोसिटी। अगर आपको वेलोसिटी फाइंड करना है तो टेक डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, टेक डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। चलो क्या होता है r² का डिफरेंशिएशन, 2r dr/dt, x² का 2x dx/dt। लेकिन ये जो y है, ये y, ये तो क्या है, ये कांस्टेंट, इसमें कुछ चेंज नहीं होगा, ये y कांस्टेंट, तो डिफरेंशिएशन 0। चलो 2 2 कैंसिल, r क्या है, dr/dt, dr/dt है u, और क्या है dx/dt, dx/dt है v डैश, स्पीड ऑफ ब्लॉक। आपको स्पीड ऑफ ब्लॉक फाइंड करना है, सब्जेक्ट बना दो rx/u। लेकिन आपको देखो आंसर किस में चाहिए, cos थीटा में। तो cos थीटा क्या होता है, cos थीटा मींस एडजेशन अपॉन हाइपोटेनियस। चलो cos थीटा मींस एडजेशन अपॉन हाइपोटेनियस, तो x/r।
तो लेकिन यहाँ पे तो r बाय एक्स है, तो r बाय एक्स क्या हो जाएगा 1 अपॉन cos थीटा. So what is the value of r by x? 1 upon cos theta. So what is our final answer? U by cos theta. Clear है students? चलो तो revise all the question. For more question, more JEE Advanced PYQ question, please share and subscribe my YouTube channel. Thank you students.